सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको वाकई बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है अपनी स्पोकन इंग्लिश जर्नी की शुरुआत, तो आपके लिए ये बैच एकदम परफेक्ट है, माइंड ब्लोइंग है। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, राइट? आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, या आपके जानने वाले हैं, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट देम नो अबाउट अस, अबाउट DSL, कि हम लोग ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, लाइव क्लास होती हैं। इन केस यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू आर मोर देन वेलकम, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें आप उनको बताएं, ठीक है? आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन, ठीक है? जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं सारी की सारी नाउन है, चाहे वो पैन है, पेपर है, टेबल है, कुर्सी है, छत है, घर है, राइट? कोई एनिमल है, ये सारे के सारे नाउन हैं। You guys are amazing, I must say. आप बहुत अच्छे हैं. Hi everybody. Now, thank you so much for this confirmation. So, hi, hello, good evening everybody. My name is Akram and I am your teacher, your friend and your biggest English cheerleader. So, I hope that you are having a very good time over there. Thank you, Dipesh. Thank you for confirming that there is no voice. Now, I have just said it and I'm sure it must be coming to you now. Now, am I audible to you? Your voice is not coming, sir. Hi, Praveer. How are you? Good evening. Good evening. Dipesh, how are you today? I hope you all are fit and fine. Helen Hardy, as good as a fiddle. Yes, everybody. So, I'm so happy to see you here with me. I'm very, very glad. Thank you so much for joining me in this session. And I hope that you have a good time with me throughout the session. And you learn at the same time. You also enjoy. Good evening, sir. Babita Kumari. Good evening, Babita. Good evening. How are you? I hope you all are fit and fine. You all are healthy. So, people, let me know how is the weather in your city, in your state. So, wherever you are from, let me know how is the weather over there. Is it kind of cold, kind of hot, sunny, rainy, cloudy? How is the weather? So please type in the chat like rainy, sunny, or maybe cloudy. Okay. So if I talk about Delhi, I would say that it is quite sunny. But if you talk about mornings and evenings, these are quite chilly, right? Yes. So thank you so much once again, everybody. I strongly welcome you to this live session where we teach you how to be confident, how to be accurate, and how to be fluent. So we are going to start this beautiful journey with you, and I'm sure you are ready. So Babita is saying sunny, not coming, sir. So is my voice not coming? I guess it's coming. So Babita is saying sunny. Okay, so it is sunny over there. Okay, that's nice. That's awesome. Sunny. But as we know that December has come, so it is supposed to be colder. Yes. Okay. So, hi, hello, good evening once again. My name is Akram and I'm your teacher, and I welcome you to this live session where we teach you how to speak good English and how to be confident along with how to be accurate, right? Yes. So, this is our day 2, right? So, I'm going to start this class if you don't mind, right? Are you all set? Are you ready, people, to start this session with me? Type ready if you are ready. Please go ahead, go forward. And all the people who are there, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ क्लास में हैं, प्लीज आप एक अच्छी जगह देख करके बैठ जाएं, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड यू हैव अ नोटबुक. ठीक है, आप एक पेन और एक नोटबुक लेके प्लीज बैठें, क्योंकि हमारी क्लास जो होने वाली है, दिस इज गोना बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव. आप बहुत सारा सीखने वाले हैं, बहुत सारा बोलने वाले हैं मेरे साथ, राइट? और आपको क्लास के बाद खुद रियलाइज हो कि यस, टुडे आई स्पोक एंड आई स्पोक लाइक एनीथिंग, राइट? सो बबीता इज सेइंग आई एम रेडी. व्हाट अबाउट अदर्स? आर यू नॉट रेडी? प्रवीर, दीपेश, व्हाट अबाउट यू गाइज? आरंट यू रेडी येट? इफ नॉट, प्लीज गेट रेडी. अच्छी जगह देके बैठ जाएं so that you are not distracted. Okay, please try to choose a place where people cannot disturb you even if they want to, right? So एक ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे. आने वाला जो 1 घंटा है बहुत ही इंगेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, right everybody? Yes. So please try to choose a place where nobody can disturb you. Dipesh is saying I'm ready, sir. Thank you. Thank you for this confirmation, and I really respect you and I really respect your comment. Fine, perfect.
So almost people are ready. So once again, I would like to bring your attention to these numbers as we were saying yesterday. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, so आप ये नंबर्स डायल कर सकते हैं. अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं, so any of the numbers can be dialed. ठीक है, आपको मुझसे बात करनी है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, so please feel free to dial any of the numbers, right? Yes. So guys, as you know that, so जितने लोगों ने अभी तक DSL क्रांतिकारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, please do it at the earliest because your classes are going to be conducted through this app only. So जितने भी लोगों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, please do download. Yes, please everybody. And ये जो ऐप है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, which means you are not going to pay even a single penny for this, right? So please do download. और ये भी हमारा ही ऐप है, DSL English ऐप, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. Now here comes your batch. So your batch name is Tufani Spoken English, right? So as your name suggests, Tufani, like we are going to do something stormy in each class, right? Yes. सो आप लोग सभी तैयार हो जाइए मेंटली फिजिकली टू, क्योंकि हमारी इस क्लास में आप बहुत सारा बोलने के लिए जा रहे हैं मेरे साथ साथ और मेरे पीछे पीछे इंग्लिश को बोलेंगे, सीखेंगे. और जो भी आपका इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं अभी, जैसे कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो समझ नहीं आता कहाँ से बोलें, कैसे बोलें, कहाँ से स्टार्ट करें, डरते हैं मिस्टेक ना हो जाए, राइट? सो आपका लेवल कैसा भी है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, राइट? आप शाय हैं, ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बाय द टाइम ये सारी की सारी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर जाएंगे. इट इज समथिंग आई बिलीव, राइट? यस. सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर लेसन, राइट? सो आज का जो दिन है हमारा, दैट इज डे 2, राइट एवरीबॉडी? सो दिस इज डे 2. इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू यूज अल्फाबेट, स्पेशली वी फोकस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन कि लाइक ए है कि ए है, आई है कि आई है, जेड जी है कि जेड है, राइट? सो कुछ ऐसे लेटर्स थे कल हमने देखा जिनको लोग अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हैं. सो मेरी ये कोशिश है कि आपको जो भी हम क्लासेस दें यहाँ से, उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर पाए, राइट? यस. और यहाँ से अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो आप उसको प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली बिकॉज एवरी सिंगल वर्ड दैट आई एम गोइंग टू स्पीक, अगर आप उसको सीखेंगे और वैसा ही प्रोनाउंस करेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स, यस एवरीबॉडी. सो इन द प्रीवियस class we learned about alphabet and also we learned about imperative sentences. So ये दो चीजें हमने कल की थी and I am sure by now you know how to make imperative sentences और आप कल से बोलते भी आ रहे होंगे if I am not wrong. Yes. So एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं, let's have a look कि हमने कल क्या किया था, क्या नहीं किया था. मैंने एक बहुत ही प्यारा सा आपको स्ट्रक्चर दिया था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे आपने कोई भी चीज बोलनी है, यहाँ आ जाइए, वहां चले जाइए, मेरी बात सुनो, मेरा फोन यूज ना करो, मुझे परेशान ना करो, राइट? ये सारी की सारी बात हमने करनी बताई थी एंड आई एम श्योर आपको ये बोलनी आ गई है, राइट? यस. तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ आप, ठीक है? चलिए अंदर आ जाइए, कम इन, अंदर आ जाइए, कम इन, अंदर मत आइए, डोंट कम इन. तो मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, या तो मेरे साथ या मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है? राइट. सो अंदर आ जाइए, कम इन, बाहर जाइए, गो आउट, बाहर मत जाइए, डोंट गो आउट, ठीक है? मुझसे बात कीजिए, टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए, टॉक टू मी, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी, मुझे सुनो, लिसन टू मी. यस. मेरा पेन दो, गिव मी माय पेन, मेरा पेन दो, गिव मी माय पेन. मेरे फोन को छुओ मत, डोंट टच माय फोन, मेरे फोन को छुओ मत, डोंट टच माय फोन. हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा गरीबों की हेल्प करें, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा अपना बेस्ट दें, ऑलवेज गिव योर बेस्ट. मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, नेवर शो मी योर फेस, यहां कभी मत आना, नेवर कम हियर, ठीक है? यस. मुझे कभी भी एडवाइस मत देना, नेवर गिव मी एनी एडवाइस, ठीक है? यस. तो ये सारा का सारा कल हमने किया था, सीखा था. अब आगे की तरफ चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, राइट? सो आज आपके लिए क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो टुडे वी हैव डे 2 and we are going forward and we have got greetings and farewells.
वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, राइट? सो जब भी हम मिलते हैं, मिलते वक्त हम ग्रीटिंग करते हैं, जैसे कि हाय, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राइट करते हैं। हिंदी में भी करते हैं आप, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम मिलते वक्त यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग जरा देखने के लिए जा रहे हैं। फाइन। सो अगर हम बातें करें इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की, राइट, सो दैट इज हाय एंड हे। सो ये होती है हमारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग, राइट? सो इफ यू मीट योर फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप उनको बोलें हाय, लाइक हाय गौरव, हाय रीना, हाय बबीता, इस तरीके से। ओके। और एक होता है हमारा सेमी फॉर्मल ग्रीटिंग विच इज हेलो। सो सेमी फॉर्मल बिकॉज आप इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो जैसे आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो उनको बोल सकते हैं हाय एवरीबॉडी, या हाय एवरीवन, या हेलो एवरीवन, या हेलो एवरीबॉडी, या हेलो राम, या हेलो श्याम, राइट? हेलो सर, हेलो मैम। तो ये आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपरली फॉर्मल, विच मीन्स हम इसको अपने जो हमारे बड़े हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, बॉसेस हैं, सुपीरियर्स हैं, उनके साथ हमें एसी को यूज करना चाहिए, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राइट, गुड आफ्टरनून। सो लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो आई होप आपको ये ऑलरेडी आते हैं, और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आज से आप इनको सीखेंगे और अपनी इंग्लिश में, जो आपकी डे टू डे इंग्लिश है, आई नो अभी थोड़ी कम है, लेकिन उसमें आप इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे, हाय रवि, हेलो गौरव, या गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये कहना स्टार्ट कर देंगे, राइट एवरीबॉडी? यस। नाउ थोड़ा सा इनको और देखते हैं अच्छे से। सो मॉर्निंग, लाइक गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग सर, राइट? सो ये है हमारे मॉर्निंग के लिए। नाउ मॉर्निंग कब से कब तक आप इसको कह सकते हैं? सो जैसे 12 AM से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, राइट? और नेक्स्ट डे 11:59 तक हम गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, ठीक है? सो ये इसकी टाइमिंग है। सो मॉर्निंग में आप किसे मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग ही कहेंगे, राइट? यस, यस। नाउ नेक्स्ट आफ्टरनून, राइट? सो गुड आफ्टरनून फादर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कब से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर 12 बज चुके हैं, ठीक है, दिन के 12 बजते के साथ ही आप गुड आफ्टरनून यूज करें। अब इसकी एंडिंग नहीं है, जैसे 4 बजे तक या 5 बजे तक या 3 बजे तक, कब तक रखना है ये आप डिसाइड करेंगे देखो देखते हुए। अगर आपको लग रहा है कि जो दिन है वो अभी निकला हुआ है, सूरज जो निकला हुआ है एकदम चमचमा रहा है, राइट, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सूरज निकला हुआ है, तो तब तक आप गुड आफ्टरनून ही कहेंगे, चाहे 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, या 3 बज रहे हैं, राइट? और जब आपको लगे कि हाँ शाम हो रही है, जब आपको फीलिंग आ जाए शाम हो रही है, उस वक्त आप बोलेंगे गुड इवनिंग, अदरवाइज आपने गुड आफ्टरनून ही कहना है। सो इसका कोई टाइम नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि इसको आपको 3:30 बजे तक करना है, या 4, या 4:30, या 5, या 5:30, राइट? जब तक आपको लगे सूरज काफी अच्छे से निकला हुआ है, आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। जब आपको लगे हाँ इवनिंग हो रही है, गुड इवनिंग। सो इट इज समथिंग विच यू विल डिसाइड, ओके? नाउ गुड इवनिंग। सो जब आपको लगे इवनिंग हो गई है तो स्टार्ट कीजिए। कहाँ कब तक बोलना है इसको? ऑफ कोर्स आपने इसको 11:59, लाइक 11:59 PM तक आपको गुड इवनिंग ही कहना है। अगर आप किसी को रात में मिलते हैं 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, मिलते वक्त आपने गुड इवनिंग ही बोलना है। सो अगर आज आप मुझसे मिलते हैं शाम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, कहीं पे भी, तो आप ये बोलेंगे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, यस, ठीक है? यस। सो आई होप इट मेक सम सेंस। सो दीज आर योर ग्रीटिंग पार्ट्स, राइट? या नाउ गुड नाइट कब कहना है? गुड नाइट कुछ लोगों को थोड़ा सा इसमें डाउट है, लाइक व्हेन टू से गुड नाइट। सो पीपल, आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूं, है ना, आई एम गोइंग टू माई बेड टू स्लीप, उस वक्त आप बोलेंगे गुड नाइट। तो अगर कोई व्यक्ति आपको मिलते वक्त गुड नाइट कर रहा है, वो गलत है, आप प्लीज ऐसा कभी ना करें, ओके? यस। सो जब आप सोने जाएंगे तभी बोलेंगे गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ऐसे आप कह सकते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, या सिंपल गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है? जाते वक्त आप गुड डे टू यू सर बोल सकते हैं, ठीक है? तो जब हम जाएंगे, कुछ लोग गुड इवनिंग कहते हैं, जाते वक्त गुड मॉर्निंग कहते हैं, जैसे वो जा रहे हैं
और जाते वक्त मुझे बोल के जाते हैं गुड मॉर्निंग सर। जाते वक्त गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं चलता है, जाते वक्त आप बोलें बाय सर, सी यू टुमारो सर, ओके, यस, हैव अ गुड डे सर, या गुड डे टू यू सर। ये सेंटेंस हम बोलेंगे जाते वक्त, ठीक है। यस, नाउ मीटिंग टाइम, आपने किसी को देखा, आपको देख के अच्छा लगा, सो आप उनको बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। सो प्लीज टू मीट यू या प्लीज टू सी यू, ठीक है, नाइस टू सी यू, ओके। सो कुछ लोग बोलते हैं नाइस मीटिंग यू। अब आप पूछ सकते हैं कि सर दोनों में अंतर क्या है। नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू सी यू, क्या अंतर है? ओके, if you know the difference, please do share with me in the chat box. So nice to meet you and nice meeting you. अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, please do share. I would like to read your comment. Please type in the chat box कि सर ये अंतर है इन दोनों के अंदर। So जो भी आप जानते हैं वो मुझे बताइए। Nice to meet you और nice meeting you, क्या अंतर है? अगर आपको पता है, प्लीज टाइप कीजिए। I'm waiting for your reply. I'm waiting for your response. Yes, do it fast. अगर आपको थोड़ा सा ही पता है, प्लीज दीपेश, बबीता, प्रवीर, अगर आपको थोड़ा सा ही पता है, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। सो देर इज नो रिस्पॉन्स हियर येट, सो मैं इसको लेके चलता हूं कि आपको नहीं पता है, ठीक है, ओके फाइन। नाउ सो गाइस, नाइस टू मीट यू हमें तब बोलना है जब हम किसी से मिलते हैं। सो सपोज करो आपने एक पार्टी रखी है, ओके, यू आर होस्टिंग अ पार्टी एंड सो मेनी पीपल आर कमिंग। तो क्योंकि लोग अभी आ रहे हैं, आपसे हेलो करेंगे, हाय हेलो गुड इवनिंग, तो आप उनको बोलेंगे नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, ठीक है। और नाइस मीटिंग यू कब बोलना है? जब आप मिले, आपने अच्छे से बातें की, नाउ आप जाना चाहते हैं, ठीक है, नाउ इज द टाइम यू वांट टू गो। सो जाते वक्त, क्योंकि आप मिले, आपने बातें की, आपको बातें करके अच्छा लगा, टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, अब आप बोलेंगे नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, यस, नाइस मीटिंग यू या प्लेजर मीटिंग यू, ठीक है। सो स्टार्टिंग में अगर आप किसी को बस अभी देखा, देखने के बाद आप तुरंत ही बोलेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू। और अगर आपने उनसे बातें की, अच्छे से बैठे हैं, टाइम स्पेंड किया है, अब आप जा रहे हैं, उस केस में आप नाइस मीटिंग यू बोलेंगे। देखो, मैं इन दोनों में अंतर जानना चाहता था आपकी तरफ से, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ, बिकॉज पीपल डू नॉट नो। तो मैंने बहुत बार देखा है, जब लोग जा रहे होते हैं बात करके, उस वक्त बोलते हैं वो नाइस टू मीट यू, वहां पे वो गलत है, वहां पे उनको बोलना चाहिए नाइस मीटिंग यू, ठीक है। सो जाते वक्त आपने नाइस मीटिंग यू बोलना है, क्योंकि आपको पता है हम बात नहीं करने वाले, वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, या मैं जा रहा हूं, वो वही है, या वो जा रहे हैं, मैं वही हूं, जहां मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, तो उस केस में आपने नाइस मीटिंग यू बोलना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नाउ दीज आर योर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, मैंने पहले ही बता दिया है हाय हेलो के बारे में, ठीक है, सेमी फॉर्मल है, बाकी हाय आपका इनफॉर्मल है। नाउ जाते वक्त हम क्या बोलेंगे? गुड बाय, गुड बाय गाइस, राइट, बाय बाय, बाय बाय स्पेशली थोड़ा सा ये चाइल्डिश लगता है, थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है, ठीक है। तो आप किसी बच्चे से, छोटे से बच्चे है ना, आपका भांजा भतीजा जा रहा है, या आप थोड़ा सा डिपार्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त आप बोलें बाय बाय, समथिंग लाइक दिस, ओके। अगर आप किसी बड़े से बोल रहे हैं, तो आप बाय बोलें, सिंपल बाय, या बाय, सी यू टुमारो, बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है। यस, सो आई होप ये आपको छोटे छोटे अंतर समझ आ रहे होंगे, और आज के बाद आप ऐसा ही करेंगे, राइट। यस, सो जाते वक्त आप यही बोल सकते हैं फेयरवेल डियर, बाय, सी यू अगेन, या सी यू टुमारो, सी यू टुमारो भी आप बोल सकते हैं, सी यू सून भी बोल सकते हैं। सो सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू सून, जल्द मिलते हैं, राइट एवरीबॉडी। सो जैसा भी आपका आपका मन है बोलने का, वो आप बोलें। अगर आपने बोलना है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, सो बाय, सी यू लेटर, चलो ठीक है कल मिलते हैं, ओके, सी यू टुमारो, चलो ठीक है जल्द ही मिलते हैं, उसके से बोलना है ओके, सी यू सून, राइट। यस, बहुत अच्छे, गुड। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट use of is, am, are, right everybody? We are going to understand how we can use is, am, are, and this is also a very basic lesson. So once again I am telling you, अगर आपको वाकई बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करनी है अपनी स्पोकन इंग्लिश जर्नी की शुरुआत, तो आपके लिए ये बैच एकदम परफेक्ट है।
माइंड ब्लोइंग है, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, राइट? आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आपके कॉलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, या आपके जानने वाले हैं, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज डू लेट देम नो अबाउट अस, अबाउट DSL, कि हम लोग ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। इन केस यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू आर मोर देन वेलकम, राइट? ये सारी की सारी चीजें आप उनको बताएं, ठीक है? चलिए, नाउ सो आज हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर, राइट? सो पीपल की बात, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इज एम आर होते क्या हैं, राइट? सो इज एम आर होते हैं टू बी, ये बी की फॉर्म होती है। सो प्रेजेंट में बी इज एम आर बनकर आता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सो आज हम बता रहे हैं आपको हाउ टू यूज इज एम आर। So Neeraj is saying yes sir. Okay, thank you. Thank you for responding. Use sir, we are active. Okay, Praveer is saying we are active. Very nice. I really appreciate. आपको देखकर अच्छा लगा। नीरज कुमार इज सेइंग आपको देखकर अच्छा लगा। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेरी नाइस। हाँ, यही हम सिखा रहे थे आपको, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर था दोनों में। नाइस टू मीट यू एंड नाइस मीटिंग यू में जो मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश की कि हाँ आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने अच्छे समझा, जाना, और आज के बाद आप जब किसी को नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू बोलेंगे तो मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको पता है कि कहाँ पे नाइस टू मीट यू कहना है या नाइस टू सी यू कहना है, और कहाँ पे नाइस मीटिंग यू या नाइस सीइंग यू कहना है। चलिए, ओके। सो हम आपसे बातें करने वाले हैं इज एम आर, ठीक है? यस। सो फोकस करते हैं इज एम आर को कैसे यूज करते हैं, राइट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इज एम आर स्पेशली हम नाउन्स के लिए यूज करते हैं, एंड नेक्स्ट आई वुड से एडजेक्टिव्स, ठीक है? एंड थर्ड आई वुड से प्रेपोजिशंस। और जिनको ये चीज पता नहीं है, मैं अभी बताने वाला हूं, एक सेकंड में, प्लीज वेट। सो नाउन्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नाउन्स? ठीक है, तो कोई भी चीज आप बता रहे हैं, जैसे दिस इज अ मार्कर, ओके, दिस इज अ माइक, दिस इज अ कोट। तो जो चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो नाउन्स हैं, ठीक है? जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं सारी की सारी नाउन्स हैं, चाहे वो पेन है, पेपर है, टेबल है, कुर्सी है, छत है, घर है, राइट? कोई एनिमल है, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स? इनको हम कभी कभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है? डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसे गुड, बैड, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, ठीक है, टायर्ड, एक्टिव, रेडी, ये सारे, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ठीक है, रिच, पुअर, ये सारे के सारे होते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है? नाउ prepositions, these are your in, on, at, for, against, with, without, ये सारी होती हैं आपकी prepositions, ठीक है? Yes, everything is noun. Praveer is saying yes, all are noun. Very nice. Praveer's subject, yes, my name is, ठीक है, perfect, perfect. I am active, yes sir. Okay, perfect. You guys are amazing. I must say, आप बहुत अच्छे हैं, because आप मेरी बात अच्छे से मान रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा कर रहे हैं। So yeah, I'm very happy to know this, that you are obeying me. Thank you so much for giving this honor, and thank you so much for giving this much of respect. I really appreciate this. Yes, right? So अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? Let us understand how to use is MR, ठीक है? So मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे I am a teacher. So मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं बोल रहा हूं मैं एक टीचर हूं या मैं एक अध्यापक हूं। So I am a teacher. टीचर क्या है? नाउन है। I am a teacher, right? Like next example, she is a pilot. So वो पायलट किसको बोलते हैं? जो हवाई जहाज चलाता है ना? Yes. So उसको पायलट बोलते हैं, right? So yeah, if you fly aeroplane, chopper, you are called as pilot. Yes, right. So I am a teacher, she is a pilot. Okay. This is a marker, that is a tree. She is a good girl. She is a good girl. He is a bad boy. Okay. Yes. He is my father. He is my father. She is my mother, or she is my mummy or mommy. ठीक है? Now
सो अगर हम देखें ये टीचर, पायलट, फादर, मदर, बॉय, गर्ल, ट्री, मार्कर, ये सारे के सारे नाउन्स हैं। ठीक है, तो इज़ेमार क्या करते हैं, ये नाउन्स के बारे में बताते हैं, नाउन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है एवरीबॉडी, नाउ आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ कमिंग टू एडजेक्टिव्स, तो अभी हम लोग एडजेक्टिव को लेके बातें करने वाले हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव्स, जैसे मैंने बोला दिस इज गुड, so this is good, right? और that is bad. तो good bad ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, everybody knows about them, right? Yes. Now जैसे I am tired, मैं क्या हूं, मैं थका हुआ हूं। I am tired. She is beautiful. क्या है, कैसी है वो, she is मतलब वो सुंदर है। So हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, वो लोगों को, चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, राइट? यस। नाउ कमिंग टू प्रेपोजिशन, ओके, जैसे हमने बोला आई एम इन द क्लास, मैं अभी कहां पे हूं, मैं क्लास में हूं। सो आई एम इन द क्लास। शी इज एट होम, वो कहां पर है, वो घर पर है। शी इज एट होम। सो इन, एट, वी आर फ्रॉम लंडन, हम लोग कहां से हैं, हम लोग लंदन से हैं। वी आर फ्रॉम लंदन। सो फ्रॉम, ये सारे के सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, राइट? यस। So I am in the class, she's at home, we are from London, right? He is on the terrace. Terrace मतलब छत पर है वो कहां पर है, छत पर है। He is on the terrace. तो इस तरीके से हम यूज करते हैं is mr, right? I hope आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। और अभी हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, राइट? सो यहाँ पे कुछ हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, जल्दी से उनको पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा हम लोग स्पीकिंग ड्रिल्स करेंगे। नाउ मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, राइट? ऐसे ही बनेगा, ऑफ कोर्स ऐसे ही बनेगा। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक नर्स हूं, आई एम अ नर्स। मैं एक पायलट हूं, आई एम अ पायलट। सो यहाँ पे ए और एन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं एक एडवोकेट हूं, आई एम एन एडवोकेट। ठीक है, मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। सो इस तरीके से हम बोलते हैं इनको। ठीक है, जैसे तुम एक अध्यापक हो तो आपने बोलना है यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। यस, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं यू आर डॉक्टर, आई एम टीचर। ये बिल्कुल गलत इंग्लिश है, हम इसको नहीं बोलेंगे। हम ऐसी इंग्लिश नहीं सीखेंगे जो कि गलत है, राइट? परफेक्ट, यस। सो तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। अच्छा, हिंदी में हम एक बोलें या ना बोलें, हम सिंपल बोलें तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूं, तो यहां मैंने एक नहीं बोला है, लेकिन इंग्लिश में आ या एन लगाना ही पड़ेगा। सो मैं अगर बोलता हूं मैं टीचर हूं या मैं एक टीचर हूं, मुझे इसकी इंग्लिश यही बोलनी पड़ेगी, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ही इज अ डांसर, she is an actor, he is an engineer, she is an architect. So आप हिंदी में एक बोलें या ना बोलें, बट इंग्लिश में आपको ए या एन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यस, परफेक्ट। नाउ आगे चलते हैं। वह चालाक है, चालाक, ही इज क्लेवर। क्या है वो, चालाक है, ही इज क्लेवर। अब जो क्लेवर है वो आपका प्रोफेशन नहीं है, नाउन नहीं, इसलिए हमने ए एन नहीं लगाया। जैसे वो हैंडसम है, ही इज हैंडसम। वो स्मार्ट है, ही इज स्मार्ट। ठीक है, वो थका हुआ है, ही इज टायर्ड। ओके, यस, वो थोड़ा बेकार आदमी है, यू नो। यस, ही इज मीन या ही इज सेल्फिश, राइट? यस। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं प्रोफेशंस को लेके। तो जब भी हम बातें करेंगे प्रोफेशंस को लेकर के, तो हमें ए और एन लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं ये बोलता हूं मैं एक यू नो आदमी हूं या वो एक लड़की है, तो इसके लिए भी हमें लगाना पड़ेगा। यस, सो ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इन दिस वे। जैसे ही इज एन एलियन, राइट? यस, परफेक्ट, गुड जॉब। यस, आगे चलते हैं। नाउ वह एक लड़का है, सो ही इज अ बॉय। हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। सो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और लेते हैं, जैसे कि मैं कक्षा में हूं, आई एम इन द क्लास। हम लोग घर पर हैं, वी आर एट होम, राइट? कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे, राइट? सो कभी कभी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैं एट बोलूं या इन बोलूं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं आई एम इन स्कूल दिस टाइम या आई एम इन कॉलेज दिस टाइम। सो मैं आपको बताना चाहूंगा,
जब भी आप अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं उस केस में आपको इन नहीं लगाना चाहिए। सो अगर आपने बोला मैं स्कूल में हूँ, राइट, आपने ये नहीं बोलना चाहिए आई एम इन द स्कूल और आई एम इन स्कूल, आपने सिंपली बोलना है आई एम एट स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में आप किस जगह बैठे हुए हैं, जैसे कि आप क्लासरूम में हैं या वॉशरूम में हैं या कैंटीन वगैरह के अंदर बैठे हुए हैं, उस केस में आप इन बोलें, जैसे आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द वॉशरूम और आई एम इन द कैंटीन। ठीक है, यस। अब जैसे आप अपने घर पर हैं, राइट, सो आपने ये नहीं बोलना चाहिए आई एम इन माई हाउस या आई एम इन माई होम, गलत है, आपने सीधा बोलना चाहिए आई एम एट होम, आई एम एट होम या आई एम एट माई होम, राइट। हाँ, अगर आप घर में किस जगह हैं अगर ये बताएं, जैसे मैं अपने रूम में हूं या मैं किचन में हूं, तो उस केस में आप इन लगाएंगे, लाइक आई एम इन माई रूम, आई एम इन द किचन। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। सो जब आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जो कि एनक्लोज्ड, एक एक ऐसा प्लेस है जहां जिसके अंदर आप आ गए हैं, राइट, उस केस में आपको इन बोलना चाहिए, अदरवाइज आप एट बोलें। अगर कोई एक ओपन एरिया है, ठीक है, तो वहां पे आप एट बोलेंगे। यस, और ऑन के लिए यस, एज यू नो कि अगर कोई बंदा टेरेस पे खड़ा हुआ है, छत पे खड़ा हुआ है, ठीक है, सो वो बोल सकता है आई एम ऑन द टेरेस। ठीक है, यस, आई एम ऑन द टेरेस। नीरज इज सेइंग आई एम एट होम, परफेक्ट। आई एम अ स्टूडेंट, वेरी नाइस नीरज, यू गॉट द पॉइंट, गुड जॉब, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए, सो करना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यस। सो जैसे मैंने बोला, एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आपको, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, अगर हमें नॉट लगाना है तो नॉट हमें यही लगा देना है बस। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, और जो भी बाकी बचा हुआ है सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है, नाउन है या एडजेक्टिव है, जो भी कुछ है वो आप यहां लगा देंगे, राइट। जो रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का वो यहां जाएगा। जैसे मैंने बोला मैं पायलट नहीं हूं, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम नॉट अ पायलट, ऐसे। जैसे वो स्मार्ट नहीं है, सो ही इज नॉट स्मार्ट। जैसे हम लोग क्लास में नहीं हैं, तो वी आर नॉट इन द क्लास, इस तरीके से। सो वेरी सिंपल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, तो अगर आपने बोलना है मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, मैं एक पायलट हूं, आई एम अ पायलट, मैं एक पायलट नहीं हूं, आई एम नॉट अ पायलट। मैं स्मार्ट हूं, आई एम स्मार्ट, मैं मूर्ख नहीं हूं, आई एम नॉट अ फूल, राइट, ऐसे आपने बोलना चाहिए उस केस में। यस, सो अगर हमें बताना है कोई चीज है, राइट, जैसे आप मेरे भाई हैं, यू आर माई ब्रदर, ठीक है, वो मेरे पापा हैं, ही इज माई फादर, वो मेरी मम्मा है, शी इज माई मदर। ठीक है, मैं आपका टीचर हूं, आई एम योर टीचर, मैं आपका दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली टेल द नेम ऑफ माई किड्स सानवी एंड प्रणत because they are requesting, please. Okay, so hi Sanvi and hi Pranat. I'm sorry if I am not able to pronounce your name properly, right? So hi, hello, how are you kids? I hope you are fit and fine and you are having a great time with your parents. But this time, please, it is my humble request, let your father study, because अगर वो इंग्लिश अच्छे से सीख जाएंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, या थैंक यू। ओके किड्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे। चलिए, सो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस पे नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर नेगेटिव सेंटेंसेस व्हिच आर राइट हियर। सो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज नॉट अ प्लेयर, राइट, ठीक है, फाइन। सो ही इज नॉट अ प्लेयर, you are not a singer, she is not an advocate, you are not an engineer. So आपने करना क्या है, बस not लगा देना है अगर आपको बोलना है कि मैं ये व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, और मैं क्लास में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द क्लास। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, राइट। यस, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग नहीं है, दे आर नॉट गुड पीपल। वो सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिपीट एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग। सो आप मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ प्लीज डू स्पीक, बहुत जरूरी है गाइस आपके लिए बोलना। जब तक आप बोलेंगे नहीं, देखो आपके मन से जो शंका है, ये जो संकोच है जो आपको बोलने नहीं देता, अगर आप मेरी क्लास में बैठ के नहीं बोलेंगे, ये आपको कभी नहीं बोलने देगा।
इसीलिए इस संकोच को, शंका को, शर्म को खत्म करो, धक्का मारो। किक दिस आउट ऑफ योर क्लास और ऑफ योर रूम और ऑफ योर हाउस और ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये जो आपकी छोटी सी भी, ये थोड़ी सी भी अगर शर्म रहेगी आपके अंदर, ये जो संकोच है, ये जो नेगेटिविटी है, थोड़ी सी भी रहेगी, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर देगी। इसलिए अभी से बोलने की कोशिश करो, ज्यादा बोलो मेरे साथ। द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम एंड द लेस यू स्पीक द लेस यू लर्न। तो ये बात ध्यान रखना, जितना कम बोलोगे उतना ही कम सीखोगे, और जितना ज्यादा बोलोगे क्लास में उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। तो आप डिसाइड करो, आपने ज्यादा सीखना है या आपने कम सीखना है। चलिए आगे चलते हैं नाउ। सो कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास ड्रिल्स के लिए। जैसे यहां बोल रहे हैं रमन इज अ प्लेयर। ठीक है, रमन इज अ प्लेयर। जैसे सचिन is a very good player. Shatrughan is saying, sir, I asked a question about M not. I could not see this. Please ask me again. And I'm really sorry that I could not respond you on this. Please accept my apology. एक बार फिर से आप लिख दीजिए अपना क्वेश्चन so that I can see. I'm waiting for your response. Fine, everybody. So यहाँ पे कुछ sentences हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ें प्लीज, मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ, प्लीज गो ahead. Raman is a player. Raman is a player, right? You are an engineer. You are an engineer. You are not a singer. You are not a singer. She is not an advocate. She is not an advocate. द रीजन मैं आपको ये चीजें बुलवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं, स्पेशली अपने प्रोफेशंस को बताते हैं, तो वो ए और एन नहीं लगाते हैं। सो द एम इज टू मेक यू स्पीक ए और एन। प्लीज आप समझेंगे इस बात को और बोलने की कोशिश करेंगे। नाउ ही इज नॉट एन ऑथर। ही इज नॉट एन ऑथर। ही इज अ नाइस डॉक्टर। ही इज अ नाइस डॉक्टर। She is a good nurse. She is a good nurse. I am a bad painter. I am a bad painter. ये है painter. Painter like painting. इसको painter नहीं बोलेंगे, ठीक है? Can I make a sentence with am not? Please explain. हाँ बनाओ बनाओ, you can make, please go ahead. If you want to make a sentence with am not, you are welcome. Please go for it. Please go for it. आप चाहते हो मैं बनाऊं सेंटेंस? डू यू वांट मी टू मेक अ सेंटेंस? प्लीज लेट मी नो। या आप चाहते हो कि मैं आपको अलाउ करूं सेंटेंस बनाने के लिए? नाउ यू आर अ फेमस बिजनेसमैन। यू आर अ फेमस बिजनेसमैन। ठीक है, ओके सो ठीक है, मैं बनाता हूं। देखिए मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द क्लास। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से नहीं हूं, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलिए तो आपको ये चीजें समझ में आ ही गई होंगी, राइट? लाइक विक्टर है एन ऑनेस्ट जज। सो विक्टर इज an honest judge. He is a simple man. She is a strong girl. I am a responsible citizen. He is in a hurry. In a hurry मतलब वो थोड़ा जल्दी में है, right? I'm Ravi मतलब my name is Ravi. Like I am Gaurav. I am Reena in this way. So I'm Ravi. She is not Rekha. She is not Rekha. My name is John. He is my father. She's my mother. You are not my friend, right? Yes. So ये थे हमारे is am are के sentences. चलिए, so now we will talk about yes no questions. So yes no questions क्या होते हैं? इसमें हम पूछते हैं जैसे मैंने पूछा are you a student? तो आप मुझे बोलेंगे yes I am या yes I'm a student. मैंने पूछा are you a doctor? Yes I am या yes I'm a doctor या no भी बोल सकते हैं no I'm not या no I'm not a doctor, right? Yes. तो आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। So these are known as yes no questions और आप इनको बोलते हैं interrogative questions या बोलते हैं close ended questions. So इसके तीन नाम हैं। पहला आपका सामने है, पहला yes no questions, दूसरा है interrogative sentences और तीसरा है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले मैं क्या करना है, इज एम आर लगाना है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव जो भी है रेस्ट में या प्रेपोजिशन वो ऐड कर देनी यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो रेस्ट पार्ट है सेंटेंस का वो हम यहाँ पे लगा देंगे। नाउ सो इज़-एम-आर सबसे पहले आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने मुझसे पूछा, मान के चलो क्या आप फ्री हैं, क्या आप फ्री हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे आर यू फ्री। सो आर यू फ्री, क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री, क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री, क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे आप। जैसे क्या तुम एक सिंगर हो, सो क्या तुम एक सिंगर हो, तो मैं कैसे पूछूंगा इसको, ऐसे ही पूछूंगा आर यू अ सिंगर। तो सबसे पहले मुझे इज एम आर लगाना है एज पर सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट लाइक आर यू। ठीक है, और फिर रेस्ट सेंटेंस। प्लीज डू माई करेक्शन, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय। ठीक है, देखिए दोनों ही ठीक है, एक आपका कॉन्ट्रैक्शन है और एक आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बोथ आर ओके। ठीक है, लेकिन यू नो आई एम अ बॉय ऐसे लोग कहते नहीं हैं, सो दिस इज नॉट नेचुरल एट ऑल। सो आप ऐसे ना बोले आई एम अ बॉय या आई एम अ टीचर। ठीक है, अच्छा साउंड नहीं करता है, नेचुरल साउंड बिल्कुल नहीं करता है, इसीलिए हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप ऐसे बोलेंगे आई एम नॉट अ बॉय, ये बहुत अच्छा है, नेचुरल है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, या चलिए सो क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री, क्या तुम एक सिंगर हो, आर यू अ सिंगर। ठीक है, जैसे क्या वह बीमार है, सो क्या वह बीमार है, तो क्या वह बीमार है, अगर लड़का है तो मैं बोलूंगा इज ही सिक या इल। सो इज ही सिक, और अगर लड़की है तो मैं बोलूंगा इज शी सिक। सो इज शी सिक, इज ही इल, इस तरीके से मैं बोलूंगा। ठीक है, जैसे क्या आप बीमार हैं, आर यू सिक या आर यू इल, राइट, ऐसे पूछूंगा मैं। जैसे क्या मैं लेट हूं, कभी कभी आप पूछते हैं भाई क्या मैं लेट हूं, सो हम पूछेंगे एम आई लेट, ऐसे पूछेंगे एम आई लेट। यस, शत्रुघ्न इज सेइंग थैंक्स, you are most welcome Shatrughan, you can ask me any question anytime, no need to thank, right, it is my job and I will be doing it। वो थोड़ा सा आप ना लिख ऐसे रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ ग्रामर के आप मुझे करना क्या है। सो नो इश्यूज, इट टुक मी अ while to understand what you were trying to say, but I'm happy that you brought this question, I'm very happy about it, and keep bringing such kinds of questions because अगर आप अपनी क्वेश्चंस को मुझसे पूछोगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो प्लीज आई humbly request you to ask me all the doubts, problems that you have right now with this beautiful language, and I will try my level best to give you answer on the spot on that problem, on that question। चलिए आगे चलते हैं। सो अगर आपने पूछना है कि आप खुश हैं, आपसे तो पूछेंगे आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। ठीक है, यस, तो मैंने आपको बताया और इसके रिस्पॉन्स वगैरह देखते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अ नर्स, क्या आप एक नर्स हैं, नो आई एम नॉट, मतलब मैं नहीं हूं, या नो आई एम नॉट अ नर्स, मैं नर्स नहीं हूं। तो आप चाहें शॉर्ट में आंसर कीजिए, आप चाहें तो फुल में आंसर कीजिए। जैसे किसी ने मुझसे पूछा आर यू अ टीचर, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ यस आई एम, ये भी परफेक्ट आंसर है, और अगर मैं ऐसे बोलता हूँ यस आई एम अ टीचर, ये भी एक परफेक्ट आंसर है। सो आप डिसाइड करो, आपने छोटा वाला आंसर अच्छा लगता है या आपने बड़ा वाला आंसर अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है उसको आप यूज करें। इज ही अ टीचर, क्या वो टीचर है, नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट अ टीचर। आई एम सॉरी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे नो होना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं वहां पे लिख रहा हूं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। ठीक है, यस, नाउ कमिंग टू दिस, लाइक आर यू अ डॉक्टर, यस आई एम, और यस आई एम अ डॉक्टर। सो जो भी आपको आंसर अच्छा लगता है उसको आप यूज कीजिए। इज ही अ क्रिकेटर, यस ही इज, और यस ही इज अ क्रिकेटर, तो यहाँ पे यस एक बार फिर से आएगा, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी अबाउट इट। यस ही इज अ क्रिकेटर। तो इस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप बैठे बैठे रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइपिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आई रिपीट, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनी काइंड ऑफ टाइपिंग। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जैसे मैंने पूछा आर यू हैप्पी, जिसका मतलब है क्या आप खुश हैं, और अगर आप खुश हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम या यस आई एम हैप्पी।
अगर आप खुश नहीं हैं आप बोलेंगे नो आई एम नॉट या नो आई एम नॉट हैप्पी। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो जल्दी से यस टाइप करो, उसके बाद मैं इस एक्टिविटी को स्टार्ट करूंगा। जल्दी से लेट अस सी हु डज इट फर्स्ट। जल्दी से देखते हैं कौन यस बोलता है। लेट अस सी हु इज फास्टर देन ऑल ऑफ यू। जल्दी से करो क्विकली। ओके, बबीता कुमारी सेइंग यस, शत्रुघ्न इज सेइंग यस, ओके, दीपेश इज आल्सो सेइंग यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्मेशन। ओके, सो आपने बोलना है, राइट? मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप रिस्पॉन्ड करेंगे बैठे बैठे, जहां भी आप बैठे हुए हैं। चलिए, सो मैं आपसे पूछता हूं, आर यू अ टीचर? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ नर्स? आर यू एन एक्टर? Are you an advocate? Are you a pilot? Are you a businessman? Are you an athlete? Are you a player? Are you in the class? Are you happy? Are you confident? Are you nervous? Are you at your home? Okay, everybody, thank you so much for this practice. तो जिन लोगों ने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की, आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी ऐसी कोई प्रैक्टिस आपने बोलना है और आपने ऐसे बोलना है कि जैसे मैं सुन रहा हूं। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलना है और जब मैं पूछूं तो उस वक्त तो जरूर 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 बोलना है, राइट? जैसे कि मैं अभी पूछ रहा था आपसे। ओके एवरीबॉडी, यस, परफेक्ट। सो अभी तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं एंड नाउ मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलना चाहूंगा। ठीक है, अभी हमने सीखा इज एम आर को सिंपल वर्जन में कैसे यूज करना है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में। फिर हमने सीखा इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और फिर सीखा हमने यस नो क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने क्वेश्चन वर्ड्स, जिनको हम कभी कभी WH वर्ड्स भी कहते हैं, उनके साथ कैसे यूज करना है। सो चलते हैं आगे की तरफ और फिर मैं कुछ देर के बाद ये क्लास को स्टॉप कर दूंगा, राइट? सो अभी जो मेरे पास वर्ड है दैट इज हाउ। हाउ को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, हाउ कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? सो जब भी हम बातें करते हैं हाउ की, हम इसलिए यूज करते हैं हाउ ताकि हम सामने वाले के बारे में समझ सकें उसकी कैसी कंडीशन है। जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, सो मैंने पूछा हाउ आर यू। अब जैसे भी आप हैं, आप ठीक हैं तो आप बोलेंगे आई एम गुड। ठीक है, ये आपने बोलना है। अगर आप ठीक नहीं हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम इल, आई एम नॉट वेल, आप ये वर्ड यूज करेंगे उस केस में। ठीक है, मैंने पूछा आपकी मॉम कैसी हैं, तो मैं पूछूंगा हाउ इज योर मॉम। हाउ इज योर मॉम या मदर या मम्मी, इस तरीके से हाउ इज योर मदर। तो जब भी हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, हम हाउ से यूज करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सवाल 3-4 पूछूंगा बैक टू बैक और आपको रिस्पॉन्ड करना है, राइट? जैसे सबसे पहले आप मुझे बताइए, अच्छा मैं सुन तो सकता नहीं, इट इज ट्रू, ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है दैट आई कैन नॉट लिसन टू यू, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, राइट? मैं आपको नहीं सुन सकता, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता हूं, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना है, आंसर करना है, ये सोचते हुए कि सर मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, दो आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस, लेकिन आपको यही अस्यूम करना है कि हाँ सर मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, यस, सो टेल मी हाउ आर यू टुडे। अब आप कुछ भी बोले, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम नॉट वेल, आई एम इल, आई एम सिक, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, हाउ आर यू टुडे। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज योर फादर। हाउ इज योर फादर, तो आप मुझे बोल सकते हैं ही इज फाइन, ही इज गुड, और ही इज नॉट वेल, ही इज इल या सिक, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द वेदर in your city. How is the weather in your city? So it is sunny, rainy, it is cold, it is hot. बोलिए जल्दी से। Okay. How is your life class? मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं। How is this class? Is it good? Bad? कैसी है? It is engaging, boring. Like it is boring. Yeah, it is engaging. Yeah, it is good. It is interesting. कैसी क्लास है ये? How is this class? How is this class? सच बोलना है एकदम। हाउ इज दिस क्लास, कैसी आपको लग रही है? आपको मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा? प्लीज आप दिल से बोलें, सर दिस क्लास इज बोरिंग, या दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, या दिस क्लास इज आउटस्टैंडिंग, दिस क्लास इज सुपर डुपर। जो भी आपके 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 माइंड में एक अच्छा सा या बेकार सा वर्ड आ रहा है, उसको आप यूज कीजिए।
ठीक है, जो भी वर्ड आपके जहन में आ रहा है। चलिए ठीक है, सो ये है आपका हाउ। तो आज के बाद आपको किसी पूछना है कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, राइट, और मौसम कैसा है, खाना कैसा है, तो आप यही पूछेंगे हाउ इज द फूड, हाउ इज द वेदर, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मॉम, हाउ इज योर लाइफ। तो यही बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे आप बोलते रहिए। चलो बोलो मेरे पीछे फिर से, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ इज योर मॉम, हाउ इज योर फादर, हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर। वेदर के लिए मैंने बता दिया है, इट इज सनी, इट इज कोल्ड, इट इज हॉट, इट इज रेनी, इट इज क्लाउडी, जैसा भी है आप बताएंगे। हाउ इज द फूड, फिर से बोलो, हाउ इज द फूड, फूड कैसा है, हाउ इज द फूड। अब फूड अच्छा है तो इट इज टेस्टी, इट इज यमी, इट इज डिलीशियस, राइट। फूड हमेशा अच्छा ही होता है वैसे। सो इट इज यमी, इट इज डिलीशियस। बबीता कुमारी सेइंग इट इज इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। प्रवीर इज सेइंग द क्लास इज assume, assume नहीं awesome लिखना है। awesome में AWESOME, awesome ऐसे लिखेंगे हम, AWE or and then some SOME, but thank you so much anyway। आपने ये बात लिख करके you made my day, आपने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ सो आज के बाद आपको हाउ से सेंटेंस बनाने या क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। How is your mood? How is your life? How is Papa? How is Mom? Right? Yes. How is the weather? How is the food? How is the movie? Right? चलिए now let us go to the next word which is what। इसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड हम इसको बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इसको यूज करते हैं तो लोगों को नाम बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, या व्हाट इज दिस। तो लोग आपसे पूछते हैं बहुत बार, भाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज दिस, आप बोलेंगे दिस इज अ फोन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ माइक। What is this? This is a marker. And what is your name? My name is Gaurav. My name is Pinky. My name is Reena. जो भी आपका नाम है वो आप लिख देंगे। Sorry for typing mistake. Sorry, typing mistake. It's okay. Come on. It is perfectly okay. आप हाँ, it is okay. चलिए, what is this? What is your name? जैसे what are you by profession? तो लोग ये सेंटेंस बहुत बार पूछते हैं, what are you by profession? भाई प्रोफेशन से आप हो क्या, आप हो क्या प्रोफेशन से। सो व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगे, और जवाब ऐसे देंगे ये सोचते हुए देंगे कि मैं आपको सुन रहा हूं। चलो आप मुझे बताओ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। एज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इतना ही बोल सकते हैं, आई एम 25, आई एम 30, आई एम 18, आई एम 17, इतना ही काफी है। ठीक है, सो अगर आपने इतना बोल दिया, आई एम 25, done, I'm 30, done, I'm 15, done, I'm 16, done। ठीक है, कुछ लोग पूरा बोलते हैं, I'm 25 years old, ये भी परफेक्ट है। I'm 30 years old, वो भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm 35 years old, perfect, no problem at all। Okay everybody? तो ये सारा का सारा मतलब सब ठीक है। अगर आप ऐसे बोलते हैं I'm 25, ये भी ठीक है, I'm 25 years old, वो भी ठीक है। ठीक है, so what is your age? Tell me, what is your age? What is your age? Okay, now what are you by profession? जैसे I'm a teacher by profession. What are you by profession? What is your father by profession? What is your father by profession? He's a shopkeeper, he is a businessman, he is a policeman, police officer। Please respond कीजिए, बैठे बैठे एक्टिव होके बैठ जाइए प्लीज। जो लोग एक्टिव होके नहीं बैठे हुए हैं वो बाद में थोड़ा सा रिग्रेट करेंगे, प्लीज। चलिए मुझे फिर से बताइए, what is your last name? Like my last name is Seni Kumar Chaudhary in this way। Okay, what is your dream? आपका सपना क्या है? What is your dream? चलिए, थैंक यू सो मच। जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, आंसर किए हैं, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। जिन्होंने नहीं किए हैं, प्लीज कीप इट अप, करते रहो प्लीज, डू इट फॉर श्योर। नाउ हमने हाउ देखा, व्हाट देखा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि है वेयर। इसको हम बोलते हैं लोकेशन वर्ड, लोकेशन वर्ड। सो क्यों बोलते हैं लोकेशन वर्ड? क्योंकि जब भी हम इसको यूज करते हैं सामने वाले को अपनी लोकेशन बतानी पड़ती है। जैसे मैंने पूछा तुम कहां हो इस समय, तो मैंने पूछा वेयर आर यू दिस टाइम। सो वेयर आर यू दिस टाइम, आप इस समय कहां पर हैं, वेयर आर यू। या मैंने पूछा भाई तुम्हारी मम्मी कहां है या तुम्हारे पापा कहां हैं, तो आप पूछेंगे वेयर इज योर फादर या वेयर इज योर मदर।
या आपका फोन नहीं मिल रहा है तो आप पूछेंगे मेरा फोन कहाँ है, वेयर इज माई फोन, ठीक है। या आपने पूछना है लाल किला कहां पर है, तो आप यही पूछेंगे वेयर इज द रेड फोर्ट। ताजमहल कहां पे है, वेयर इज द ताजमहल, राइट। व्हाइट हाउस कहां पर है, वेयर इज द व्हाइट हाउस। आपका घर कहां पर है, वेयर इज योर हाउस, ठीक है। सो जब भी हम बोलेंगे वेयर आर यू, आपको बताना पड़ेगा जहां पे भी हैं आप, जैसे कि आई एम इन द क्लास, आई एम एट होम, आई एम ऑन द टेरेस, इस तरीके से आई एम इन द स्ट्रीट, आई एम ऑन द रोड, आई एम इन द पार्क, ठीक है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे ना, या थैंक यू। चलिए, सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर इज योर फादर दिस टाइम, वेयर इज योर मॉम दिस टाइम। तो आप जहां पर भी हैं वो बताएं, जैसे कि ही इज एट होम, शी इज एट होम, he is in the office, she is in the office, he is outside, she is outside, he is in the park, she is in the park, ऐसे करके आप मुझे बताइए। मैंने आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मान के चलो मैंने पूछा वेयर इज द रेड फोर्ट, तो आपने बोलना चाहिए इट इज इन दिल्ली। मैंने पूछा वेयर इज द ताजमहल, आपने बोलना चाहिए इट इज इन यूपी, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, अमेरिका में है या चाइना में है, कहां पर है, तो आप आंसर में बोलना। आपको अगर पता है तो आप बोलेंगे इट इज इन अमेरिका, इट इज इन अमेरिका, ये बोलना चाहिए आपको आंसर में। जैसे वेयर इज द वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना कहां पर है बताओ। वेयर इज आईफिल टावर, आईफिल टावर कहां पर है बताओ। वेयर इज द बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा कहां पर है, रिस्पॉन्ड करो, लाइक इट इज इन, और उस कंट्री का नाम या उस सिटी का नाम जहां पर भी वो है। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये है हमारा लोकेशन वर्ड जो कि वेयर है। आई नो क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं जो कि मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी बुक को ऑर्डर करना है सो प्लीज आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, और आपको जो भी बुक चाहिए, जैसे कल सर ने आपको काफी सारी बुक्स को दिखाया था, बताया था, तो आप उन बुक्स को मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बुक मंगानी है यहाँ पे, जैसे महाबेसिक की भी एक बुक है, राइट, इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है, ठीक है, एक वोकेबुलरी की बुक है, तो आपको अगर लगता है कि हाँ आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप इनको ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, यहाँ से कुरियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है आप कॉल कीजिए और अपने डाउट को प्लीज बिना किसी प्रॉब्लम के बिंदास एकदम पूछिए, ठीक है। वी आर देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। सो कोई अगर आपका डाउट है प्लीज मालूम कीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है सो लेट्स कॉल इट अ डे। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे, और कल है आपका डे 3 विच मीन्स तीसरा दिन, राइट। अच्छा पहले ये बता के मुझे जरूर चाहिए कि आज का जो सेशन था, हाउ डिड यू फाइंड दिस, आपको लगा कि हाँ इट वाज यूजफुल, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। कल मैंने क्लास में अल्फाबेट पढ़ाया था, ABCDEFG, राइट, और उसके बाद मैंने आपको छोटे छोटे सेंटेंस बताए जिनको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस, और आज हमने आपको सिखाया हाउ टू यूज इज एम आर, राइट। सो इस बात से प्रूव होता है कि ये बैच बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है, और जो भी लोग ये लगता है जिनको कि हाँ मैं कमजोर हूं, मुझे बेसिक से ही अपना स्पोकन स्टार्ट करना है, प्लीज उनका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के साथ साथ जो भी आपके भाई बहन, कजन्स या फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उनका लेवल बिल्कुल जीरो से है, आप उनको प्लीज इनवाइट कीजिए। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच बबीता कुमारी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, राइट। आई एम सो ग्लैड यू केम to join this session, you joined here, right। So मैं कल एक बार फिर से आपसे मिलूंगा 3 o'clock। I will see you tomorrow at the right time, right place, ठीक है। Till then आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, bye bye, have a good day।